السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ اے میرے شہر، مدتوں بعد لوٹ رہا ہوں تیری آغوش میں۔ 3 دہائیوں کے بعد جولی کی یورپ سے لاہور واپسی میں 3 دن باقی رہ گئے۔ جولی نے لاہور روانگی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ سٹی 42 کی ٹیم نے یورپ میں دن گزارا جولی کے دکھ سکھ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ ڈرامہ کوئین وینا ملک کا شادی کے بعد پہلا انٹرویو۔ وینا ملک کا کہنا ہے کہ ایک فوجی کی بیٹی ہوں، بہادری سے جینا سیکھا ہے، اصل سے شادی کے لیے ہاں کر کے اپنے والد کو منایا۔ انتظامیہ کا چونگی امرسدو سے کماہاں لدھڑ روڈ تک تجاوزات کے خلاف آپریشن، سینکڑوں دکانیں، پیٹرول پمپ مسمار کر دیے گئے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 86ویں سالگرہ۔ ساندہ روڈ پر پیپلز پارٹی لاہور کے دفتر میں تقریب۔ جیالو نے روایتی انداز میں سالگرہ کا کیک کھایا۔ کیک کٹتے ہی ماہر جیالو نے 86 پاؤنڈ کیک کے آنکھ جھپکتے ہی بقیے ادھیڑ دیے۔ گیس کی بندش نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ گڑی چاہو کے رہائشیوں کا مغل پورہ روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ۔ ادھر مین گوپال نگر میں 4 روز سے گیس کی بندش، علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ جوہر ٹاؤن سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے رہائشیوں کا بجلی کی عدم فراہمی پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے غیر قانونی بجلی کی وجہ سے لیسکو حکام بار بار بجلی کاٹ جاتے ہیں۔ شہر میں گھریلو ملازمہ کی پراسرار ہلاکت کا ایک اور واقعہ۔ فیصل ٹاؤن میں ایک گھر سے 16 سالہ عذرا کی گلے میں پھندہ لگی لاش برآمد۔ پولیس نے مالکان کو شامل تفتیش کر لیا۔ کام 1 ادارے 2، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو سفید ہاتھی بنا دیا گیا۔ کتابیں چھاپنے کا اختیار نصاب اتھارٹی کے حوالے کرنے سے 250 ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سیکرٹری اسکول نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی۔ ہائی کورٹ فل بینچ کا حلقہ بندیوں کو غیر قانونی قرار دینے کا تحریری فیصلہ آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان۔ عدالتی فیصلہ موصول ہونے کے بعد پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سفارش کرے گی۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک کی زیر صدارت پی پی 144 کی یوسیز کے بلدیاتی امیدواروں کا اجلاس۔ بلدیاتی الیکشن کے التواء اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کانسٹیبل کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے یاسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ورثاء کا ملتان چونگی پر احتجاج۔ مظاہرے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پولیس کی ورثاء سے تلخ کلامی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر میاں منیر ہانس کو خلیجی ممالک میں پیپلز پارٹی کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں اداکارہ میرا کی گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات۔ بھارتی ہائی کمشنر ڈاکٹر ٹی سی راگھوان کا شہر میں مصروف ترین دن۔ ڈاکٹر مبارک علی سے ملاقات کی اور میاں میر دربار پر حاضری دی۔ لاہور گیریزن پولو کلب میں آرمی پولو چیمپئن شپ 10 کور الفا نے جیت لی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے نمایاں کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ لاہور پولو کلب میں ڈائمنڈ پولو کپ کا فائنل ڈائمنڈ پینٹس نے اپنے نام کر لیا۔ پنجاب کالج آف کامرس کے سپورٹس ہال میں فائر بال ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ ایان سمیر نے میدان مار لیا۔ ادھر الحمرہ میں باڈی بلڈنگ مقابلوں میں آصف پرنس مسٹر لاہور اور عابد گجر جونیئر مسٹر لاہور بن گئے۔ ریجنل انڈر 19 ٹیموں کی تاریخی کامیابی۔ لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کی عبوری کمیٹی کے سربراہ عزت حسین سید نے 1 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ اور شہر میں سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہے گا، جبکہ رات میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھوئے گا۔ آپ نے جانی اور بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔
नाज़रीन, मुद्दत तो था जिसका इंतजार वो घड़ी आ ही गई। जूली ने पाकिस्तान रवानगी के लिए रख्ते सफर बांध लिया। वापसी में 3 दिन बाकी। सिटी 42 की टीम ने दिन गुजारा यूरोप में जूली के दुख सुख के साथियों के साथ। मजीद तफसीलात रिजवान नकवी से। जिस वक्त हम ब्रसल्स में वाक़ उस शॉप में मौजूद हैं जहाँ पे जूली ने अपने यूरोप में क़याम के दौरान आखिरी 7 साल जो है वो यहाँ पे गुजारे। यहाँ पे दुकान के ओनर चौधरी मोहम्मद नियाज तारड़ और उनके शागिर्द मोहम्मद सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जूली के साथ जो यहाँ पे अरसा गुजारा वो कैसा रहा। नियाज साहब बताइएगा कि आपके दोस्त जूली जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो इनकी यहाँ पे जो है वो आपके साथ काफ़ी इनका वक्त गुजरा, तो कैसा लग रहा है और क्या यादें हैं इनकी आपके साथ वाबस्ता जो आप हमें बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूली इस दुकान ते 7 साल गुजारे ने और इतने जूली सारा कोई करदा धरदा है। सेलमैन भी यही आई, मैं तो कदी कदी आंदा है हफ्ते में 1-2 बारी। और जूली तो बाद हुण अपना सहेल गुजर है ये इस दुकान का होंदा है ते बड़ा अच्छा टाइम गुजरा थे और अल्लाह का शुक्र है कोई ते गिला शिकवा सानू इस चीज़ का बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा ये बताइएगा कि इस दुकान में 7 साल का अरसा इन्होंने गुजारा है, तो कोई ऐसी बात जो कि दिलचस्प हो जो कि आप नाजरीन से शेयर करना चाहें। दिलचस्प बात है जैसे दिल होंदा बुआ खोलदा है, जैसे दिल ना हो सुते रहंदा है मैंने खोल दिया। दिलचस्प बात। जी सोहेल साहब आप बताइएगा कि जूली जो हैं वो अभी इन्होंने बताया कि जैसे ये आपके सीनियर भी हैं, आपके उस्ताद भी हैं, तो आपने बतौर उस्ताद जो है वो जूली को कैसा पाया है। मैंने तो बहुत अच्छा इंसान पाया इनको। तकरीबन हम 10 साल जो है 7 साल तकरीबन इधर इकट्ठे रहे हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं 7 साल में इनके साथ। और मेरे ये उस्ताद भी हैं और साथ भी रहे हैं इधर। और नियाज तारड़ साहब जो हैं ये मालिक हैं इस दुकान के, इनके साथ मैं 7 साल से अब काम कर रहा हूँ। जी सुहेल हमें यहाँ पे जूली के मामूलात के हवाले से बता रहे थे। अभी हम जो है वो यहाँ पे साथ ही वो रिहाइश गाह है, वो कमरा है जहाँ पे जूली ने तवील अरसा गुजारा। और जूली यहाँ पे जो है अपने दोस्तों चौधरी मोहम्मद नियाज तारड़ और मोहम्मद सुहेल के हमरा ऊपर कायम जो है वो कमरा, उसमें जूली क़याम पज़ीर रहा। ये वो कमरा है जहाँ पे जूली ने यूरोप में क़याम के दौरान यहाँ पे तवील अरसा गुजारा। जूली हमारे साथ इस कमरे में मौजूद हैं। यही उनकी छोटी सी दुनिया थी जहाँ पे उनके मामूलात और उनके तमाम तर वक्त जो है वो अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पे काम के बाद जो है वो अपने कमरे में गुजरता था। जूली बताइएगा कि इस कमरे से आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं और यहाँ पे गुजरा हुआ वक्त जो है वो पाकिस्तान में आपको याद आएगा, तो यहाँ पे कोई ऐसी याद इस कमरे के हवाले से और दोस्तों के साथ गुजरा हुआ वक्त जो है वो उसके हवाले से कुछ अपनी बातें जो हैं वो शेयर कीजिएगा। इधर बहुत जो वक्त है वो दिलचस्प गुजरा है और सब हंसी मजाक होता था इधर, और सब भी एक दूसरे की इज्जत एहतराम भी करते थे, बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ। और अल्लाह ताला के फजल व करम से जितना अरसा इधर गुजरा है निहायत सुकून से गुजरा है। जूली बताइएगा कि जब आप काम के बाद फारिग होकर अपने रूम में आते थे तो अपनों की यादें तो आती होंगी, ऐसे लम्हात में वक्त कैसे गुजारते थे। ऐसे में बस ये टीवी चैनल लगा लिया, कुछ ये फिल्में देख ली, कोई पंजाबी ड्रामे देख लिए, तो जैसे पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती थी। अच्छा आपके बारे में आपके दोस्त अहबाब कहते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मालूमात हैं, तो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तानी कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है। मेरे को उस वक्त तो यूसुफ खान पसंद था, उसकी ज़्यादा फिल्में देखते थे। पाकिस्तानी फिल्म आपने आखिरी मरतबा कौन सी फिल्म देखी थी पाकिस्तानी। अब तो याद भी नहीं है। आप ऐसी कौन सी डिश बनाते थे जो कि आपके दोस्त बड़े जो है वो खुश होकर खाते थे। इन सब को मटन के बगैर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, या चिकन होना है या मटन होना है, या बिरयानी है उसमें भी मटन है या चिकन है, वरना जब दाल होती थी तो इधर हमारे पास तो मेहमान भी कोई नहीं ना रहता था। तो आपने खाना बनाना पाकिस्तान में सीखा था या यहाँ पे आके हालात ने सब कुछ सिखा दिया। यहीं बना बना के
इधर जो लाइफ है वो अकेले आदमी की लाइफ तो आपको पता ही है, और छड़ों का खाना तो वैसे भी मशहूर होता है, तो हम तो इधर जो है वो पका पका के मास्टर हो गए। यूरोप से पाकिस्तान रवानगी के लिए जूली ने रखते सफर बांध लिया है, जबकि पाकिस्तान जाने से कबल जूली उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। और सिटी 42 की टीम, जिसमें कैमरामैन जाहिद शफी और रिपोर्टर शाहिद नदीम सिपरा, मोहम्मद उमर असलम और प्रोड्यूसर मोहम्मद जहीर कालू शामिल हैं। सिटी 42 की ये टीम भी जूली के हमरा सऊदी अरब जाएगी और उम्रा की अदायगी के बाद जो है वो जूली के हमरा पाकिस्तान पहुंचेगी। और सिटी 42 के नाजरीन को इसी तरह जूली की रवानगी के हवाले से और जूली की पाकिस्तान आमद के हवाले से वक्तन फ़क्तन आगाह करते रहेंगे। जी आसन पाकिस्तानियों के दिलदार लाहौरी जूली के दुख दर्द के साथियों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे चुंगी अमर सद्दू में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से। चुंगी अमर सद्दू से कमाहां लद्दड़ रोड तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। सैकड़ों दुकानें मस्मार कर दी गई हैं। हुकूमत की तरफ से तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान TMO नश्तर टाउन सैयद अली अब्बास बुखारी, TOR राना मोहम्मद अशरफ, AC मॉडल टाउन तारिक मंजूर चांडियो और टाउन के अमले ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके फेरोजपुर रोड चुंगी अमर सद्दू से कमाहां लुधड़ रोड तक सैकड़ों दुकानें मस्मार कर दी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। नाज़रीन, शहर में गैस की बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। गढ़ी शाहू के रिहायशियों ने मोगलपुरा रोड पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। गढ़ी शाहू और उससे मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों ने सड़क ब्लॉक करके गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर इसके मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों ने सड़क ब्लॉक करके गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। सिटी 42 से बात करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि गैस की बंदिश से वो घरों में खाना पकाने से कासिर हैं और उनके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों से बारहा मुलाकात करने के बावजूद मसले का कोई हल नहीं निकल रहा। मुजाहिरीन आध घंटा सड़क ब्लॉक करने के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। UC 215 मेन गोपाल नगर में भी गुज़श्ता 4 रोज से गैस बंद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह गोपाल नगर में भी गैस नहीं आ रही। 4 रोज से गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने सुई गैस हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में UC 215 के चेयरमैन हाफिज नवीद, वाइस चेयरमैन राना नाजिम, यूथ काउंसलर कदीर शकील, जनरल काउंसलर अमाद खान आफरीदी, मोहम्मद यूनुस, जनरल काउंसलर मोहम्मद शाहिद, अजमत अहमद, मिर्जा अनवर, मोहम्मद नईम, शकील गुल, लेबर काउंसलर जैक्सन जॉन और जमील गुलजार समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलाका मकीनों ने सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से अपील की कि गैस की बंदिश खत्म की जाए। नाज़रीन, गढ़ी शाहू के इलाके में गैस बंदिश के हवाले से रिफत अब्बास की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान ने सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और शौकत खानम चौक पर रायविन रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उन्हें सोसाइटी इंतजामिया की बजाय लेस्को बिजली फराहम करे। शौकत खानम चौक में एहतजाजी मुजाहरे में सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सलमान जफर, मोहम्मद शहबाज, तनवीर अहमद शामी, अब्दुल्ला कासिम, मिर्जा शौकत बेग, इकरम खान, बशीर भट्टी और मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बागबानपुरा में रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और मुशीर सूबाई हुकूमत अनवर शेख की ताजपोशी भी की गई। महफिल नात में अनवर हुसैन, सूफी सफ्तर अली, हाजी खलीफा मोहम्मद हुसैन, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया, कारी गुलाम हुसैन, अल्लामा मुबारक अली रिजवी, शाहिद इकबाल कादरी और मोहम्मद अली सजन नक्शबंदी ने शिरकत की। इनके अलावा हाफिज वाजिद अली कादरी, गुलाम मुस्तफ़ा रज़ा सियालवी, आतिफ सुल्तान मदनी, मोहम्मद फ़खर अलवी, शबीर अहमद मोड़वी और कबीर अहमद मोड़वी समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद भी महफिल में मौजूद थी। इस मौका पर मुल्क के मारूफ नात ख़्वानों ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। महफिल के दौरान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक और मुशीर सूबाई हुकूमत अनवार शेख की ताजपोशी भी की गई। और नाज़रीन, बुलेटिन में बात करेंगे मीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अदाकारा मीरा ने कहा है कि हस्पताल का प्रोजेक्ट उनकी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए दिन रात कोशा हूँ। दूसरी जानिब
प्रिंस शेख हूती बिन सुहेल अल मखतूम ने हस्पताल के लिए एक वार्ड अतिया देने का ऐलान कर दिया है। अदाकारा मीरा ने CEO ऑप्शंस कैफे डॉक्टर कैसर रफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मार्केटिंग मैनेजर फवाद खान भी मौजूद थे। डॉक्टर कैसर रफीक ने बताया कि रियल एमिरेट्स ग्रुप के प्रिंस शेख हूती बिन सुहेल अल मखतूम अदाकारा मीरा के हस्पताल के लिए पहले वार्ड का अतिया देंगे। अदाकारा मीरा का कहना था कि वो कैसर रफीक और प्रिंस हूती बिन सुहेल अल मखतूम की बेहद मशकूर हैं। अदाकारा मीरा की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मीरा को हस्पताल के लिए जमीन देने के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मीरा ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने उन्हें बहुत ज्यादा वक्त दिया और उनकी बात तसल्ली से सुनी और उन्होंने 3 से 4 अफराद की ड्यूटी लगाई है कि वो उन्हें जमीनें दिखाएं, जिसके बाद वो उनमें से किसी एक का इंतखाब करेंगी। गवर्नर साहब ने बहुत टाइम दिया और बहुत ज़्यादा इसके बारे में उन्होंने इंटरेस्ट लिया। गवर्नर साहब ने 3 या 4 लोगों को अपॉइंट किया है जो कि हमें ज़मीनें दिखाएंगे। उसके बाद ज़मीन की सिलेक्शन होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करे, मजाक न बनाया जाए। आप लोग सीरियस रहें, आप इसको मजाक में मत लें, ये एक सीरियस प्रोजेक्ट है। एक सवाल के जवाब में अदाकारा मीरा ने कहा कि वो सियासत में नहीं आएंगी। देखिए मेरी बात सुने, मैं कभी सियासत में नहीं आऊंगी। मीरा अपनी शादी समेत कई सवालात गोल कर गईं और कोई जवाब न दिया। मेरा एजेंडा जो है इस वक्त हस्पताल है और सिर्फ हस्पताल है। मीरा कभी अपने ग्लासेस उतारती रहीं और कभी पहनती रहीं और कभी अमेरिका से वापसी के दिन भी सहाफियों से ही पूछती रहीं। ठीक है। अभी मेरे ख्याल में मुझे अमेरिका से आए हुए आज कितने दिन हो गए तो नाज़रीन, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को गैर फ़ाल बनाकर किताबों की इशाअत और तरसील का काम पंजाब निसाब अथॉरिटी के हवाले करने के मामले की छानबीन शुरू हो गई है। साबिका हैसियत बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट। बोर्ड 1962 से 2007 तक बाकायदगी से बोर्ड के माहिरीन की निगरानी में पहली जमात से 12वीं तक की किताबें शाया करता रहा है। 2009 में पंजाब निसाब अथॉरिटी कायम करके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से किताबों के मुसव्वदे की तैयारी और रजिस्टर्ड पब्लिशर्स से शाया कराने का इख्तियार छीन लिया गया, जिस पर मुलाजिमीन 6 महीने तक सरापा एहतजाज बने रहे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में चेयरमैन बोर्ड समेत 250 मुलाजिमीन तनख्वाहें ले रहे हैं, जबकि 200 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजिमीन को भी पेंशन की मद में करोड़ों रुपए अदा करना पड़ते हैं। इसके बावजूद इस इदारे से कोई काम नहीं लिया जा रहा। पंजाब निसाब अथॉरिटी इस वक्त नाज़रीन, दूसरी जानिब बात की जाए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार देने का तफसीली तहरीरी फैसला आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान है। तफसीली फैसला मौसूल होने के बाद ही पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 8 और 9 को कालादम करार देते हुए पंजाब भर की हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार देने का हुक्म सुनाया था, जिसका तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया था। फैसला सुनाने के बाद केस की समाअत करने वाले तीनों जजेस मौसम सरमा की अदालती तातीलात पर छुट्टियों पर चले गए। ज़राए के मुताबिक अदालती तातीलात के बावजूद केस की अहमियत के पेश नज़र फैसला सुनाने वाले फुल बेंच के सरबराह सैयद मंसूर अली शाह तफसीली फैसला लिखवा रहे हैं। शहर में घरेलू मुलाजमा की पुरस्कार हलाकत का एक और वाक़या। फैसल टाउन में एक घर से 16 साला अजरा की गले में फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने मालिकान को शामिल तफ्तीश कर लिया। 16 साला अजरा गुज़श्ता 3 माह से मोचीपुरा के रिहायशी मलिक शौकत के घर मुलाजमा थी, जहां इतवार की दोपहर उसकी लाश सीढ़ियों पर पड़ी मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मालिकान का कहना था कि बच्ची ने खुदकुशी की, जबकि अजरा के वरसा ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई जिससे खुदकुशी की जा सके। पुलिस ने लड़की की लाश और कपड़े तहवील में लेकर घर के मालिक मलिक शौकत को 3 बेटों यासिर, आतिफ और आसिफ समेत हिरासत में ले लिया है।
गुजरपुरा पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वाले चौकीदार यासीन की नमाज जनाजा भी पुलिस गर्दी का शिकार हो गई। शेर जवानों ने वरसा को मुमकिन एहतजाज से रोकने के लिए मैयत तक छीन ली, जिस पर जनाजे की शुरका मुश्तइल हो गए। तफसीलात के लिए देखते हैं वकास अहमद की यह रिपोर्ट। मकतूल यासीन की मैयत को नमाज जनाजा के लिए करामत कॉलोनी से मंसूरा डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में लाया जा रहा था, जिसे लाहौर पुलिस के शेर जवानों ने मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मुल्तान चुंगी चौक में हाईजैक कर लिया। वरसा ने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो पुलिस ने मैयत छीनी और कब्रिस्तान की तरफ भाग निकले। एहलकारों की ज्यादती देखकर यासीन के वरसा और जनाजा के शुरका मुश्तइल हो गए। पुलिस ने रवायती हरबा इस्तेमाल किया और पकड़ धक्कर शुरू कर दी, जिस पर एहतजाज शुरू हो गया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस एहलकारों ने पहले 4 बच्चों के बाप को नाहक कत्ल किया और बाद में जनाजे की बेहुरमती की और शुरका पर तशद्दुद किया। मैं इनके साथ खड़ा हुआ था, मुझे मारते मारते ले गए हैं थाने। जनाजा पुरअमन जा रहा था, कोई इनका अंदर कोई ऐसे आदमी भी नहीं है शरपसंद हो, बल्कि जितने भी आदमी हैं सब मेहमान हैं। पुलिस ने जो है ना वो ज्यादती की है, हालांकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की मुदाखलत पर मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया और मंसूरा डिग्री कॉलेज में यासीन की नमाज जनाजा अदा करने के बाद इसे मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन मुल्तान चुंगी चौक में एहतजाज का इरादा रखते थे। उन्हें रोकने के लिए मुदाखलत की तो बदनस्मी पैदा हो गई, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ वकास अहमद। हाज़िन वकास अहमद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब बुलेटिन में बात करेंगे भारतीय हाई कमिश्नर डॉक्टर TCA राघवान की शहर में मसरूफियात के हवाले से। TCA राघवान ने शहर में मसरूफ दिन गुजारा, डॉक्टर मुबारक अली से मुलाकात की और मियां मीर दरबार पर हाजिरी भी दी। तफसीलात के लिए देखते हैं रजा जैदी की रिपोर्ट। भारतीय हाई कमिश्नर डॉक्टर TCA राघवान ने सुबह मारूफ तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर TCA राघवान का कहना था कि डॉक्टर मुबारक अली बहुत पुराने तारीखदान हैं और उनसे मिलकर बेहद खुशी हुई, जबकि डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी किताब भी भारतीय हाई कमिश्नर को तोहफे में दी। एक मेरा इरादा ये भी था कि डॉक्टर मुबारक अली से मिलूं, और वो पाकिस्तान के मारूफ तारीखकार हैं। उन्होंने मुझे ये किताब दी अपनी, और लाहौर की हिस्ट्री के बारे में, उसकी तारीख के बारे में, उसके कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में मुझे बताया, तो बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मुबारक अली से मुलाकात के बाद भारतीय हाई कमिश्नर ने डॉक्टर आरिफ हसन की बेटी रिजा के वलीमे में शिरकत की और कुछ वक्त वहां गुजारने के बाद वो मियां मीर दरबार पहुंचे, वहां हाजिरी दी और तस्वीर भी बनाई। वहां उन्हें मियां मीर दरबार की तारीख के हवाले से भी आगाह किया गया। लाहौर के हवाले से उनका कहना था कि लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ के खाने बहुत लजीज हैं। बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। इतना फ़र्क नहीं लगता जितना लोग सोचते हैं हिंदुस्तान के कल्चर में और पाकिस्तान में। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि और लोग आए जाएं। डॉक्टर TCA राघवान ने कल्चर और तारीख से दिलचस्पी रखने के बायस नादरा बेगम के मज़ार का भी दौरा किया और तस्वीर बनाई और लाहौर की सकाफत की तारीफ भी की। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ रजा जैदी, सिटी 42। हाज़िन भारतीय हाई कमिश्नर TCA राघवान ने तो शहर में मसरूफ दिन गुजारा। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हल्का PP 144 की UCs के बल्दियाती उम्मीदवारों का इजलास हुआ। मलिक परवेज़ के दफ्तर सिंहपुरा में होने वाले इजलास में हल्का PP 144 की UC से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशस्तों के लिए नामजद उम्मीदवारान ने शिरकत की। इजलास में MPA बाऊ अख्तर अली, मियाँ कलीम रियाज, शेख नईम, मियाँ सईद नज़ीर, अरशद बेग, एजाज अनवर टीपू, शफाकत अली, मियाँ शौकत, उमर बिशारत, सैयद जावेद शाह, मियाँ असलम, जौदत मसूद समेत दीगर भी मौजूद थे। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सांदा रोड पर पीपल्स पार्टी की जानिब से कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। जियानों ने रिवायती अंदाज में केक के बखिए उधेड़ कर तकरीब का मज़ा ख़राब कर दिया। सांदा रोड पर पीपल्स पार्टी लाहौर के दफ्तर में होने वाली तकरीब में सदर लाहौर समीना खालिद खुरकी, राना अशर निसार, जाहिर जुल्फ़िकार खान, फजल भट्ट, जावेद अख्तर, जरका भट्ट, इफ़्फ़त भट्ट, खुरम फारूक और मानी पहलवान समेत जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के बाद उनकी सालगिरह का केक भी काटा गया।
86 पाउंड वजनी केक कटते ही जियाले उस पर टूट पड़े और देखते ही देखते केक का सफाया कर दिया। इस दौरान इंतजामिया की जान से केक बचाने की हर कोशिश रायगा गई। चीना झपटी के दौरान बहुत से जियालों के कपड़े भी खराब हो गए। उधर यूसी 64 में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की उम्मीदवार आगा अब्बास काज़मी की रिहाइशगाह पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। चौक नवाब साहब मोची दरवाज़ा में केक काटने की तकरीब में गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, आगा मीर हसन, आलिया अजीज़, मुदस्सिर इमरान, सज्जाद शाह, आगा मुश्तबा काज़मी, इलियास जावेद भट्ट और पार्टी के दीगर जालों ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं मांगी गईं। किसी भी फन को बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए मेहनत तो शर्त है ही, लेकिन अगर इस काम से मोहब्बत और अकीदत का अंसर भी शामिल हो जाए तो ये सोने पर सुहागा के मुतरादिफ होती है। 75 साल अब्दुल जलील शहर का वाहिद कारीगर है जो मेहनत और मोहब्बत के जज्बे के तहत निस्फ सदी से जिनाह कैब की तैयारी का काम कर रहा है। नाज़रीन, ताजपुरा स्कीम इतवार बाजार में गैर कानूनी स्टॉल्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन ना हो सका, जिसके बायस इन स्टॉल्स पर सारिफीन की खाल उतारने का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब सब्जियों और फलों की कीमतों में 1 रुपये से लेकर 6 रुपये तक कमी देखने में आई। ताजपुरा इतवार बाजार में इंतजामिया गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए स्टॉल्स खत्म ना कर सकी। बाजार में आने वाले सारिफीन ने शिकवा करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से मुख्तस की गई जगह के अलावा लगे स्टॉल्स पर 5 से 10 रुपये महंगी सब्जियां बेची जा रही हैं। पंजाब यूथ फेस्टिवल में रंगो नूर की किरणें फूटना शुरू हो गई। यूनियन काउंसिल लेवल पर कुकिंग का मुकाबला आमना अहमद, जबकि खूबसूरत ड्रेस मेकिंग का मुकाबला अक्सा इब्राहिम के नाम रहा। एजाज वसीम बाकरी की ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब यूथ फेस्टिवल के यूनियन काउंसिल मरहले के पहले रोज खवातीन के ड्रेस मेकिंग और कुकिंग के मुकाबले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम सनत जार में मुनक्किद हुए, जहां घरेलू खवातीन को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का भरपूर मौका मिला। ड्रेस मेकिंग मुकाबलों में खवातीन ने नए और पुराने डिजाइन के सूट तैयार किए, जिसमें मौसमी रंग भी वाज़े नजर आए। हर साल हो इसी तरह, क्योंकि इस तरह हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो काम कर सकें। यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत अच्छा हम लोग के एक्सपीरियंस साथ में आ रहा है। ममालिक में तो औरतें बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं। यहाँ पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको ऐसे मौके नहीं फ्राहम किए जाते, तो ये बहुत अच्छा है कि यूथ फेस्टिवल वालों ने इस तरह के फेस्टिवल रखने शुरू कर दिए। कुकिंग मुकाबलों में तैयार किया गया गाजर का हलवा सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जबकि फ्रूट चाट, सलाद और लजीज दही भल्लू ने भी सबके दिल जीत लिए। मैंने गाजर का हलवा बनाया, उम्मीद है कि इंशाल्लाह विन करेंगे। फेस्टिवल से जो खवातीन हैं वो इनकरेज भी होती हैं और अपनी छुपी खूबियाँ सलाहियतें उनकी बाहर आती हैं, उनको पता चलता है कि हम कितने टैलेंटेड। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी फहमीदा मुश्ताक ने हुनरमंद खवातीन की सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि यूथ फेस्टिवल ने दीवारों के पीछे छुपा टैलेंट भी मंजर आम पर ला खड़ा किया है। हमारी ये एक अचीवमेंट है। हमारे इन इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं और उस ट्रेनिंग के नतीजे में ये लोग इस काबिल हुए कि ये अपना काम डिस्प्ले कर सके। कुकिंग के टीम इवेंट में राहिला मुमताज और शाहिदा सरवर, जबकि इनफरादी मुकाबलों में आमना अहमद फाते रही। ड्रेस मेकिंग मुकाबलों में अक्सा इब्राहिम को खूबसूरत सूट तैयार करने पर पहली पोजीशन से नवाजा गया, जबकि सलमा अब्दुल हमीद दूसरी और हफ्सा बीबी तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। पोलो टूर्नामेंट जीत लिया है। फातेह टीम के राजा तैमूर, नदीम, मीर शुएब और आतिफ यार टवाना ने 2-2 गोल स्कोर किए। एजाज वसीम बाकरी की ये रिपोर्ट देखता है। लाहौर पोलो क्लब में खेले गए फाइनल मार्के में डायमंड पेंट्स ने अलाइड बैंक को 4 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। इब्तदाई 3 चक्कर्स के इख्तिताम पर दोनों टीमें 4-4 स्कोर से बराबर थीं। ताहम आखिरी चक्कर में डायमंड पेंट्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए अपनी टीम को शानदार फतह से हमकिनार किया। चैंपियन टीम के मीर शुएब, राजा तैमूर, नदीम और आतिफ यार टवाना ने 2-2, जबकि रनर अप टीम के साकिब खान खाकवानी ने हैट्रिक समेत 4 गोल किए। पोलो शौकीन ने फाइनल मैच के साथ साथ खूबसूरत मौसम और खानों से भी खूब लुत्फ उठाया। बिल्कुल ज़रूरी है कि गैर मुल्की टीमें आके हमारे साथ पाकिस्तान में खेलें। बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली।
फाइनल मार्के में महारत दिखाने वाले पोलो खिलाड़ियों को अपने मुल्क में गैर मुल्की टीमों की आमद का शिद्दत से इंतजार है, जबकि इस मौके पर MNA खुरम दस्तगीर का कहना था कि गैर मुल्की टीमों की वापसी के लिए हुकूमत मुअस्सिर पॉलिसी बना रही है। बैरून मुल्क की टीमें पाकिस्तान में आती हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के महाज पर वाज़े पेशरफ्त होगी, ना सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए बल्कि दूसरे एक्शंस के ज़रिए भी। एक दूसरे की टीम्स को होस्ट करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैचेस होने चाहिए। यहाँ कोई आके देखे इतने पीसफुल माहौल में, इतने अच्छे माहौल में जो है लोगों को एक वेंट आउट मिल जाता है, एक स्पोर्ट है और सपोर्टर्स भी आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। टूर्नामेंट के सब्सिडरी फाइनल में कॉलोनी शुगर ने मास्टर पेंट्स को 4.5 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में नुमाया खेल पेश करने वाले मीर शोएब को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। हर एतवार पोलो फाइनल लाहौरियों के लिए सबसे बड़ी तफरीह बन चुका है। अब खिलाड़ियों के साथ साथ शहरी भी इस इंतजार में हैं कि कब गैर मुल्की खिलाड़ी यहां एक्शन में नजर आएंगे। कैमरामैन ख्वाजा फहीम और जाहिद अजीम मलिक के साथ इजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब यूथ फेस्टिवल 2014 के दूसरे मरहले में यूनियन काउंसिल की सतह पर खेलों के मुकाबलों का आगाज हो गया है। पहले रोज अवाम की बड़ी तादाद ने मुकाबलों में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर खेलों के आगाज की रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर के 9 टाउन्स की 72 यूनियन काउंसिलों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात हुए, जिनमें 2078 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत की, जिनमें से 684 ने कामयाबी अपने नाम की। लाहौर के शालामार टाउन में आर्म रेसलिंग का मुकाबला मलिक शहजाद, जबकि क्रिकेट टेप बॉल का मुकाबला हमजा इलावन ने जीत लिया। निश्चित टाउन में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिनका इफ्तिताह MNA वहीद आलम और मुस्लिम लीगी रहनुमा राना मुबशर ने किया। क्रिकेट टेप बॉल के इवेंट में मुगल 11, जबकि रस्साकशी में शहबाज 11 ने कामयाबी हासिल की। आर्म रेसलिंग की मुख्तलिफ कैटेगरीज में अली और दानिश कामयाब रहे। गुलबर्ग टाउन में क्रिकेट टेप बॉल का मुकाबला हुआ, जिसमें M सकलैन और M कबीर 11 ने कामयाबी हासिल की। तकरीब के मेहमान खुसूसी MP मोहसिन लतीफ थे। इकबाल टाउन में रस्साकशी के मुकाबलों में अमजद और बशारत 11 ने मैदान मारा। रावी टाउन में रस्साकशी में हमजा और उमैर घुमन 11 कामयाब हुई। नादरा ग्राउंड में मुनक़िदा फेस्टिवल में MNA महर इश्तियाक, MPA मियां मरगूब, MPA चौधरी गुलजार अहमद समेत नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में यूनियन काउंसिल के सतह पर क्रिकेट, बैडमिंटन और रस्साकशी के मुकाबले करवाए गए, जिनमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। HBFC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में यूनियन काउंसिल के सतह पर यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव शाहिद अब्दुल्ला, ज्वाइंट रजिस्ट्रार बशारत अली, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद मौज़म खान, HBFC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर महबूब अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब लतीफ और ऑफिस सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शुएब समेत सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। फेस्टिवल में यूनियन काउंसिल के सतह पर नात ख्वानी, बैडमिंटन और रस्साकशी के मुकाबले मुनक़िद। और नाज़रीन, बुलेटिन में आर्मी पोलो चैंपियनशिप के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि 10 कोर अल्फा ने 11 कोर को शिकस्त देकर आर्मी पोलियो चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। लाहौर गैरिसन पोलो क्लब के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान पाक सर्वर रूट पर खेले गए 4 चक्कर्स पर मुश्तमिल फाइनल मार्के में 10 कोर अल्फा और 11 कोर के माबैन सख्त मुकाबला देखने में आया। उधर लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबलों में आसिफ प्रिंस मिस्टर लाहौर और आबिद गुज्जर जूनियर मिस्टर लाहौर का टाइटल जीतने में कामयाब हो गए हैं। अलहमरा हॉल में लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 62वीं मिस्टर और जूनियर मिस्टर लाहौर डिवीजन के मुकाबले हुए। 60 किलोग्राम के मुकाबलों में उस्मान मसूद ने पहली, उसामा ने दूसरी और उस्मान मसूद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 70 किलोग्राम की कैटेगरी में हसन साबिर ने पहली, फरीद एजाज ने दूसरी, आबिद हुसैन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गल्फ ममालिक में पीपल्स पार्टी का सदर मुकर्रर कर दिया गया। मियां मुनीर हांस की तैनाती का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा ने जारी कर दिया। मियां मुनीर हांस ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हैं। सिटी 42 से बात करते हुए मियां मुनीर हांस ने कहा कि वो अपनी तैनाती पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अफरादी कुव्वत भिजवाने के लिए इराक की हुकूमत से बात की है, जिससे पाकिस्तान में न सिर्फ ज़र मुबादला में इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तानी सनतकारों को भी खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इराक एयरलाइन को पाकिस्तान और कौमी एयरलाइन PIA को इराक बराह रास्त भिजवाने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر چودھری اختر رسول نے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر کامران مجاہد سے ملاقات کی۔ صدر ہاکی فیڈریشن اختر رسول نے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر پی ایچ ایف نے پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس ہاکی گراؤنڈ دوبارہ آباد کرنے کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کی ہاکی گراؤنڈ ماضی میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ بہت سے قومی اولمپئنز پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس ہاکی گراؤنڈ میں کھیل کر قومی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ پنجاب ٹیچرز الائنس نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اساتذہ کے لیے غیر تدریسی سرگرمیاں ختم کی جائیں۔ غوث الاعظم روڈ پر سٹی 42 کے دفتر کے سامنے پنجاب ٹیچرز الائنس پنجاب کے چیئرمین رانا عطا محمد، صدر اللہ بخش کیسر، سرپرست تاج حیدر، اللہ رکھا گجر، اللہ دیتا طاہر، رشید بھٹی، افزانہ شاہین، راہیلہ یاسمین اور اساتذہ کی کثیر تعداد مظاہرے میں شریک تھی۔ اساتذہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم کے افسران، چیکنگ کمیٹیوں کے ممبران اور مانیٹرنگ سیل کے عملے نے ان کے ساتھ منفی رویہ اپنا رکھا ہے۔ اساتذہ کی چھٹیاں بند کرنا اور تنخواہوں سے انکم ٹیکس کی 75% چھوٹ ختم کرنا زیادتی کے مترادف ہے۔ اور ناظرین، کیک تو سبھی کھاتے ہیں، لیکن کیک کھانے کا انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ جس کیک کا حال ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس نے پچھلے جنم میں ضرور کسی بھوکے کے پیٹ کا دل دکھایا ہوگا جو اس کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سالگرہ کی اس تقریب کے منتظمین نے کوشش تو بہت کی کہ شرکاء تہذیب کے دائرے میں رہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ مفلسی اسے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ لگتا تو ایسا ہے کہ شرکاء یہ تہیہ کر کے آئے تھے کہ آج کیک بچ کر جانے نہ پائے اور صدیوں کی بھوک ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ جی ہاں جناب، جہاں آج کل 2 وقت کی روٹی ملنا محال ہے، وہاں دعوت میں کیک ملے تو پھر جذبات تو بے قابو ہو ہی جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی ملک محمد وحید نے قادر بخش پارک میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کوٹلی پیر عبدالرحمان تا سرائے جوڑا پیر سیوریج اور سڑک کی تعمیر کا اعلان کیا۔ کوٹلی پیر عبدالرحمان قادر بخش پارک میں اجتماع سے مسلم لیگ نون کے ایم پی ملک محمد وحید کے خطاب کے موقع پر خرم روحیل اصغر، حاجی افضل مغل، مہر عرفان، چودھری طارق نسیم اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ایم پی ملک وحید نے کوٹلی پیر عبدالرحمان تا سرائے جوڑا پیر سیوریج اور سڑک کی تعمیر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حلقے سے عوامی مسائل ختم کریں گے۔ ادھر باغبان پورہ کے علاقے قائد اعظم انٹرچینج کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ 22 سالہ نوجوان عظیم جاں بحق جبکہ اس کے 2 ساتھی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق افشا پارک کے رہائشی 22 سالہ عظیم امتیاز اور راجو گھر سے ایئرپورٹ کے علاقے میں کرکٹ کھیلنے گئے۔ واپسی پر قائد اعظم انٹرچینج کے قریب ان کی موٹر سائیکل بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، جس سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں موقع پر موجود راہگیروں نے اپنی مدد آپ کے تحت شالامار ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق سر میں شدید چوٹیں لگنے کے باعث عظیم ہسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ اس کے باقی دونوں ساتھیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش مکمل کرنے کے بعد عظیم کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ اور پلاٹ سے لاکھوں مالیت کا سامان چوری کرنے والے کرایہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر شاد باغ کا رہائشی داد رسی کے لیے سٹی 42 کے دفتر پہنچ گیا۔
متاثرہ شہری محمد افضال نے الزام لگایا کہ اس کے کرایہ داروں اشرف، دلاور، شبیر وغیرہ نے اس کے پلاٹ سے لاکھوں روپے مالیت کی سنوکر ٹیبل بنانے والی مہنگی لکڑی اور دیگر سامان چوری کر لیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر 6 چیزیں برآمد کروا لیں مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ویلکم بیک ناظرین، کسی بھی فن کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے محنت تو شرط ہے ہی، لیکن اگر اس میں کام سے محبت اور عقیدت کا عنصر بھی شامل ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگا کے مترادف ہوتی ہے۔ 75 سالہ عبدالجلیل شہر کا واحد کاریگر ہے جو محنت اور محبت کے جذبے کے تحت نصف صدی سے جناح کیپ کی تیاری کا کام کر رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عامر ڈار کی یہ رپورٹ۔ سالہ بارش بزرگ عبدالجلیل 25 سال کا تھا جب اس نے قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ہو کر جناح کیپ بنانے کا فن سیکھا۔ اس فن سے وابستہ ہزاروں کاریگر یہ کام چھوڑ چکے ہیں، لیکن عبدالجلیل شہر کا واحد کاریگر ہے جو آج بھی اسی عقیدت سے یہ ٹوپیاں بنا رہا ہے۔ قائد اعظم کو ٹوپی تحفے میں پیش کرنے کی خواہش تو پوری نہ ہو سکے، لیکن آج بھی کئی نامور شخصیات اس کے پاس ٹوپیاں خریدنے آتی ہیں۔ قائد اعظم کو دیکھ کر متاثر ہوا ہوں، میں نے ٹوپیاں بنانی شروع کر دی ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور منسٹر اور چیف جسٹس یہ آتے ہیں میرے پاس۔ اس منفرد کیپ کی تیاری انتہائی مہارت کی متقاضی ہے۔ بغیر کسی مدد کے یہ بوڑھا کاریگر تنہا یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ جانوروں کے چمڑے کو خوبصورتی سے کاٹ کر ایک مخصوص سانچے میں ڈھالتا ہے اور پھر اس کی انتہائی خوبصورتی سے سلائی کر کے مختلف سائزز کی ٹوپیاں تیار کرتا ہے۔ پہلے ادھر بہت تھے، اب کوئی بھی نہیں ہے، واحد میں یہ کام کر رہا ہوں اور سارے بھاگ بھوگ گئے۔ مال مہنگا ہونے کی وجہ سے یہاں آتا ہی کوئی، اور ایک آدمی کوئی ہوگا وہ بھی بیکار ہے، کام نہیں کر سکتا۔ عبدالجلیل کے مطابق وہ 2 سے 3 گھنٹے میں ایک ٹوپی تیار کرتا ہے۔ خام مال مہنگا ہونے کے باعث تمام کاریگر اس کام کو چھوڑ چکے ہیں۔ وقت کی بے رحم لہروں نے اس فن کو آثار قدیمہ بنا دیا ہے اور مہنگائی کا جن اسے آہستہ آہستہ نگل رہا ہے۔ ہمیں اس فن کو بچانا ہوگا۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ عامر ڈار، سٹی 42۔ عامر ڈار کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ عاصم گرلز کالج دھرمپورہ میں حلقہ تخلیق و ادب کے زیر اہتمام ماہانہ محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت معروف شاعر شفیق سلیمی نے کی، جبکہ علامہ بشیر، خلش بخاری، ریاض روحانی، ساحل ہاشمی، میجر خالد، ایوب ساغر، طفیل اعظمی اور شفیق اتاری سمیت دیگر شعراء محفل میں شریک تھے۔ شعراء کرام نے اپنے کلام سنا کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ سینئر صحافی اور جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف خاور نعیم ہاشمی کے بیٹے کی دعوتی ولیمہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں انجام پا گئی۔ تقریب میں معروف سیاسی، سماجی اور صحافی شخصیات نے شرکت کی۔ سینئر صحافی خاور نعیم ہاشمی کے صاحبزادے کی نعیم ہاشمی کی شادی گزشتہ دنوں ماریہ ظفر سے انجام پائی تھی۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے کرسٹل ہال میں ہونے والی ولیمے کی تقریب میں مسلم لیگ نون کے MNA حمزہ شہباز شریف، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، امین فہیم، بیرسٹر اعتزاز احسن، بشرا اعتزاز احسن، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری محمد اقبال، فرید پراچا، لیاقت بلوچ، شفقت محمود، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف، حامد میر، سہیل وڑائچ، جہانگیر بدر، ذوالفقار علی بدر، اسد جیلانی، ذوالقرنین بخاری، اداکار حبیب، اداکارہ میرا، شاہد قادر، رؤف، اداکارہ ریشم، اداکار غلام محی الدین، اسلم گل ٹھاکر لاہوری اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ناظرین، صحت عامہ سے متعلق کچھ خبریں شامل کریں گے سٹی صحت میں۔ خوشنود ہسپتال کے زیر اہتمام جلو گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے مفت علاج کی سہولت سے استفادہ کیا۔ جلو گاؤں میں خوشنود ہسپتال کے زیر اہتمام لگائے گئے میڈیکل کیمپ میں MNA مہر اشتیاق نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ میڈیکل کیمپ میں الٹرا ساؤنڈ، گائنی، شوگر، کلینکل لیب، TB، آرتھوپیڈک، سرجری، ناک کان گلا، ہارٹ کیئر، آکوپنکچر، فزیو تھراپی، ECG کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ فیکٹری ایریا کے علاقے میں چور گھر کے تالے توڑ کر شہری شوکت کی بیٹی کا جہیز، 3 لاکھ کے طلائی زیورات اور 1.5 لاکھ نقد لے اڑے۔ غریب اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مالی امداد کی اپیل کر دی ہے۔
شوکت علی کی اہلیہ کے مطابق وہ بیٹی کی شادی کے لیے خریداری کرنے بازار گئے ہوئے تھے کہ واپسی پر گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے ملے۔ متاثرہ خاندان کے مطابق چور گھر سے لاکھوں مالیتی جہیز کا سامان، 3 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات اور 1 لاکھ نقدی چرا کر فرار ہو گئے ہیں۔ شوکت علی کی اہلیہ کے مطابق اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان بنایا تھا جو اب چوری ہو چکا ہے۔ اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگ رنگ دنیا سے کچھ خبریں شامل کریں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ ایسٹرن میڈیا پروڈکشنز نے نئے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے کے لیے رائلٹی شو کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ شو کے ذریعے موسیقی اور ڈانس کے شعبے میں نئے ٹیلنٹ کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں متعارف کروائے گا۔ ایسٹرن میڈیا پروڈکشنز کے ڈائریکٹر شازی خان نے لاہور پریس کلب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو فٹ ہے وہی ہٹ کے عنوان سے شروع کیے جانے والے ٹیلنٹ ہنٹ رائلٹی شو کا مقصد ملک میں موجود حقیقی ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانا ہے۔ ناظرین، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔